Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all of you. Welcome to BYJU'S exam prep and welcome to this next session on games and tournaments that we are going to have today. So before I start, can you all just confirm it quickly to me? Am I audible and visible? Hi Sonali, good evening. Sorry, good afternoon. Good afternoon to all of you. I'm sure that all is okay. There are no operational issues now. All of you can hear me, all of you can see me. Hi Angela, good afternoon. Good afternoon, guys. Very, very good afternoon. Okay, so today in this class, I'm going to discuss two sets from the actual CAT exam, and both of these sets actually are assumed to be on the tougher side when they appeared in CAT. But the point is just to, why do we want to discuss it here? The simple reason is that we want to understand the concept of games and tournaments. What kind of questions do they ask? How are we going to use games and tournaments concept in these questions? That's what we are going to basically learn through this. Okay, that's what I'm going to discuss in this session. Hi Harshad, good afternoon. So once again, a good afternoon to all of you, and let's start without any further delay. Let us start with our very first set. So in this series, as you already know, we have been discussing different kind of sets from LRDI which have appeared in CAT and that have been based upon different kind of subtopics, you can say. So today it is about games and tournaments. Okay. So here is the first set that we are going to discuss. It's a set I think from CAT 2003, if I'm not wrong. So please read it first. After that we'll move ahead. I think 2003 नहीं 2004 का है मेरे ख्याल से. But still एक बार इसको पढ़ लीजिए and after that I'll move ahead to the next screen. This topic is seemingly very difficult. Music or I would somehow agree with you that games and tournaments is slightly tougher topic. And that's exactly why I'm discussing CAT sets today, right? To just have an understanding that how can we deal with these sets, and is there any way through which we can make them easy? Here is the initial information. The coach John sat with the scorecards of Indian players from the three games in a one-day cricket tournament where the same set of players played for India, and all the major batsmen got out. John summarized the batting performance through three diagrams, that is one for each. In each diagram, the three outer triangles communicate the number of runs scored by the three top scores from India, where K, R, S, V, and Y represent CAF, Rahul, Saurav, Virendra, and Yuvraj, respectively. I'll be showing you the figure very soon after this. From whole topic of DILR, only games and tournaments is difficult for me. Sonali, if we just keep discussing it either here on our YouTube channel or on our app, I see that you are quite regular there as well. So if we just keep doing these things, very soon we'll feel very comfortable in these areas. It's all practice based. Where can we find 500 important questions PDF? Harshad, I do not think that we share the PDF of those. We just discuss the questions. And I don't think that PDF is allowed to be shared or not. If it is allowed, of course, I'll talk to the team and they'll share it in the link of those videos itself. I'm sure this part you have, understood now. Whatever is written on this screen, I'll move on to the second screen now. Here is it. And the picture is also there in front of you so that you can easily understand what is he trying to say. Because previously he said that the numbers which are in the outer triangles, they are communicating the top three scores from India, where K, I, R, S, V, and Y, they are representing Kaif, Rahul, Saurav, Virendra, and Yuvraj. So what do we mean by top three triangles, outer three triangles? Now I think you can easily see them. Okay. What apart from that is given to us? It also says the middle triangle in each diagram denotes the percentage of total score that was scored by the top three Indian scores in that game. For example, if you look at the screen, against Pakistan, 90% of the runs were scored by these top three people. That is Y, V, and K. Yuvraj, Virendra, and Kaif. These three people have scored 90% of the overall score which was scored against Pakistan.
Similarly, against South Africa, Kaf, Saurav and Rahul, these are the top three scores. Add all three of them and that will become 70% of the total runs scored against South Africa. Similarly, talk about Australia, 55, 87, 50, which are scored by Rahul, Yuvraj and Saurabh. The total of these three scores is 80% of the total score which was scored against Australia. Okay, so this is what the middle triangle is represent. Then he says no two players score the same number of runs in the same game. That means if I say the top three scores, let's say against Pakistan, they are 40, 130 and 28. So Virendra scored 130, Yuvraj scored 40, Kaf scored 28, and these are the top three. No two scored the same. That means everyone else scored less than 28, right? No one even scored equal to Kaf after that. 130, 40 and 28 are the three top scores. Everyone else would have scored less than 28. Similarly, against South Africa, apart from this 75, 51 and 49 that you see on the screen, everyone else scored less than 49, which is the lowest among these three. और वही ऑस्ट्रेलिया के केस में भी हो रहा है. What next? John also calculated two betting indices for each player. The R index. R index क्या है? It is the difference between highest and lowest scores in the three games. जितना भी हाईएस्ट किसी ने स्कोर किया, जितना भी लोवेस्ट किसी ने स्कोर किया, उनके बीच का डिफरेंस इज आर इंडेक्स. एंड एम इंडेक्स इज द मिडल नंबर इफ स्कोर्स आर अरेंज्ड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, अब अगर नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका क्या मतलब हुआ? नॉन इंक्रीज का मतलब है कभी भी वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए. इसका मतलब इट वुड ऑटोमेटिकली बी अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो एम इंडेक्स आएगा वो जो मिडल में लिखा हुआ हो when it is a decreasing order. This is what it says. Okay, आगे बढ़ जाता हूं मैं यहां से. What I have done, I have written these informations on one single page and I have made a table as well, as you see on your screen. This table is about the runs scored by these people against the three different countries, the total score scored against these three countries, the M index of these people and R index of these people. So let's just have some homework before we move on to the questions. पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस पार्ट पे. Then let's try to fill up the table and try to understand कि R index और M index इनके क्या क्या हो सकते हैं. Accordingly, then we'll be answering the questions. This table would be available to you on the upcoming pages as well. Let us start. First of all, against Pakistan, Virendra has scored 130, Yuvraj has scored 40, and Kaf has scored 28. We don't know about R and S. Similarly, against South Africa, Saurav has scored 75, Kaf has scored 51, Rahul has scored 49, बाकियों का पता नहीं. Against Australia, Yuvraj has scored 87, and then Rahul has scored 55, and Saurav has scored 50, बाकियों का नहीं पता. These are the top three scores. Now, if I talk about Pakistan, these top three scores, they add up to 130 plus 40 plus 28, that is 198. And this 198 is actually, he says, 90% of the total score against Pakistan. This 198 is 90% of the total score against Pakistan. So if 90% of something is 198, I am sure all of you are good enough to calculate it after this step कि अगर किसी नंबर का 90% 198 है तो वो टोटल कितना रहा होगा? It must have been 220, और जो बाकी का 10% है, that is 22, that must have been scored by the other people. ये तो टॉप थ्री स्कोर्स हैं, बाकी सब ने ऑफ कोर्स 28 से कम स्कोर किया होगा, लेकिन टोटल मिला के the other people would have scored total of 22 runs. Similarly, against South Africa, 51 plus 49 plus 175 will make it 175, and this 175 is 70% of the total score against South Africa. It is 70% of the total score. किसका 70% 175 होता है? That's 250. तो 250 में से 175 तो इन तीन लोगों ने स्कोर किया. The remaining 75 is scored by other guys, but all of them must have scored less than Rahul. All of them must have scored less than Rahul. Similarly, when I talk about Australia, 87 plus 55 plus 50, ये कितना आता है? 192.
and this 192 is 80% of the total score against these guys. ठीक है, तो किसका 80% 192 होता है? लेट्स कैलकुलेट दैट एज वेल. तो 192 80% होता है 240 का, तो जो बचा हुआ 48 है that must have been scored by others, and those other people must have scored less than 50. Every one of them must have scored less than 50. I am sure that this table is clear to all of you now. टॉप 3 स्कोर्स हमें गिवन थे, ऐड करके हमने तीनों का टोटल निकाला. दैट टोटल इज इक्वल टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल विच इज गिवन इन द टेबल, इन द ट्रायंगल्स. ट्रायंगल के हिसाब से मुझे पता लग गया विद अगेंस्ट पाकिस्तान दिस 198 वाज 90% ऑफ टोटल, उससे मैंने टोटल निकाल लिया. सेम फॉर साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. थ्रू दैट वी आल्सो गॉट टू नो व्हाट डिड द अदर पीपल स्कोर. आई एम श्योर टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज ओके. प्लीज जहां डाउट हो वहां बोलिएगा. टाइप इट इन द चैट बॉक्स. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव. जो भी आपके दिमाग में आइएगा प्लीज बताइएगा जरूर. आगे बढ़ जाता हूं मैं इससे. लेट्स मूव अहेड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एम इंडेक्स एंड आर इंडेक्स, ऑफ कोर्स वो टोटल टीम का एम इंडेक्स तो आर इंडेक्स तो होगा नहीं. एम इंडेक्स एंड आर इंडेक्स उसने क्या बोला है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एम इंडेक्स. एम इंडेक्स क्या है? सॉरी, आर इंडेक्स. आर इंडेक्स इज द डिफरेंस between his highest and lowest scores in the 3 games. Highest और lowest का difference. Let's first calculate about वीरेंद्र. One thing is for sure, वीरेंद्र का highest score तो पक्का 130 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. What about his lowest score? His lowest score can be South Africa or Australia. The point is, against South Africa, उसने जो भी स्कोर किया होगा 49 से तो कम स्कोर किया होगा. So against South Africa, he is going to score anything from 0 to 48. And against Australia, उसने जो भी स्कोर किया होगा 50 से तो कम स्कोर किया होगा. Even 49 भी स्कोर नहीं कर सकता because others have scored only 48. अगर सारे 48 के 48 भी वो स्कोर कर दे तो भी उसका स्कोर 0 से 48 की रेंज में ही आएगा. So when I talk about 130, which is his highest score, that is fixed. लेकिन lowest तो फिक्स नहीं है. Lowest can be anything from 0 to 48 and his R index वो कहां से कहां तक हो सकता है? 130 से 0 माइनस करोगे तो 130 आएगा और 130 से 48 माइनस करोगे तो 82 आएगा. इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 82 टिल 130. जल्दी बताओ क्या ये बात मेरी समझ आई आप सब लोगों को? वीरेंद्र सिंह हैज अ क्वेश्चन. सर इन पाक अदर स्कोर 222 दैट विल इंक्लूड आर एंड एस. यस यस वीरेंद्र, वो बाकी सभी लोगों को इंक्लूड करेगा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वी, वाई एंड के, क्योंकि उन तीनों के तो टॉप 3 स्कोर्स हैं, वो तो गिवन है. बाकी सभी लोगों के स्कोर उसके अंदर आ जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. वीरेंद्र का हाईएस्ट स्कोर 130 है, लोएस्ट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू 48. सो देयरफॉर द आर इंडेक्स व्हिच इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कैन बी 130 minus 0 because lowest can be 0, lowest can be 1, lowest can be 2, lowest can be 3. It can go up to 48. So maximum it can go up to 48. So R index can go from 130 minus 0 to 130 minus 48. That is a range of 82 to 130. I'm sure it is clear to all of you. Similarly, let's start talking about Yuvraj now. Yuvraj has scored 40 against Pakistan, 87 against Australia, but we do not know what is his score against South Africa. But can I surely say he must have scored anything from 0 to 48 against South Africa? He must have scored anything from 0 to 48 against South Africa. Now, just pay attention to this part. The highest score of Yuvraj is surely 87. There is no doubt about it. Highest score of Yuvraj is surely 87. But the lowest score of Yuvraj, it can range from 0 to 40. It cannot range from 0 to 48. Because 40 is definitely one of the scores. If he scores anything above 40 against South Africa, the minimum would be 40. Because against Pakistan, he has already scored 40. So minimum score has to be either 40 or less than that. So if he scores less than 40 against South Africa, that would be minimum. But if he scores more than 40 against South Africa, 40 would be minimum. So therefore, his R index can be from 87 minus 0 to 87 minus 40. That is, it can be 47 to 87. That is the R index for Yuvraj, which is possible.
आई एम अज्यूमिंग दैट दिस पार्ट हैज बीन अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, ये समझ आ गया होगा। एंड विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट नाउ, कैन वी गो अ बिट फास्ट? लेट्स स्ट्रेट अवे कैलकुलेट अबाउट कैफ। अब आप फटाफट कर ही लेंगे। 51 यहां है, 28 यहां है, यहां का स्कोर 0 से 48 हो सकता है। हाईएस्ट इज श्योरली 51, लोएस्ट इज फ्रॉम 0 टू 28, राइट? क्योंकि एक जगह तो 28 वो स्कोर कर चुका, सो देयरफॉर हिज रेंज is 51 minus 28, that is equal to 23, to 58 1 minus 0, that is 51. Let's talk about Rahul. राहुल का यहां पे स्कोर जो आएगा दैट विल बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू 22, तो हाईएस्ट तो पक्का 55 है, लोएस्ट विल बी फ्रॉम 0 टू 22, सो हिज रेंज इज 33 टू 55. एंड लास्टली व्हेन आई टॉक अबाउट सौरभ, हाईएस्ट तो पक्का 75 है, लोएस्ट आएगा 0 से 22 के बीच में, सो 0 से 22 अगर मैं माइनस करता हूं, 75 माइनस 22 इज 53 up to 75. These are the R indexes of these people. प्लीज डू लेट मी नो, इज दिस अंडरस्टूड, राइट? मुझे पता है ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जा रहा है। लेट मी टेल यू द ईयर इट अपीयर्ड इन द एग्जाम, आई थिंक 2004 ओनली, दैट ईयर they actually came up with questions of 1 marks and 2 marks. It was a 2 marker set जिसके अंदर 4 क्वेश्चन थे, चारों 2-2 मार्क्स के, तो अल्टीमेटली इट वाज ऑफ 8 मार्क्स, मतलब इट वाज इक्विवेलेंट टू 8 क्वेश्चंस, जो आजकल कभी भी नहीं आते हैं। आजकल मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक का डीआई सेट आया है 2022 और सॉरी 21 और 20 में, और 2022 में तो 5 क्वेश्चंस के ही थे। 8 क्वेश्चंस वाला तो कभी नहीं आया कभी भी गेट में, तो ये 8 क्वेश्चंस का सेट था। दिस मच वाज पॉसिबल, इतना तो बनता भी था, है ना? चलिए, आई एम अज्यूमिंग कि ये सब समझ आ गया होगा। अब हम लोग एम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एम इंडेक्स? एम इंडेक्स वो कह रहा है मिडिल नंबर, राइट? लेट अस टॉक अबाउट वीरेंद्र फर्स्ट। उसका मिडिल नंबर क्या आएगा? 130 तो पक्का मिडल में नहीं है। ही स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 0 एंड 48 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, समवेयर बिटवीन 0 एंड 48 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो कहना इसे उसके मिडल में कुछ ना कुछ 0 से 48 के बीच ही आएगा। सो देयरफॉर द मिडल इंडेक्स फॉर युवरा वीरेंद्र, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 48 ओनली। हाईएस्ट तो पक्का 130 है, लोएस्ट होगा वो 0 से 48 के बीच होगा, और मिडिल भी 0 से 48 के बीच होगा, तो 0 से 48 के बीच कोई भी एम इंडेक्स हो सकता है। एम इंडेक्स में फिर बता दूं, व्हेन यू अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो बीच में नंबर आता है वो एम इंडेक्स है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट युवराज। 87 यहां स्कोर किया, 40 यहां स्कोर किया, और यहां 0 से 48। अगर यहां पे आपका स्कोर 40 से बड़ा है तो मिडिल इंडेक्स 0 आ जाएगा, राइट भाई? तो सॉरी, अगर यहां 40 से ज्यादा स्कोर करोगे तो मिडिल इंडेक्स जो है आपका वो 40 से बड़ा नंबर आ जाएगा। 41, 42, 43 कोई भी हो सकता है। भाई हाईएस्ट स्कोर 87 है। अब लोएस्ट स्कोर क्या है? अगर लोएस्ट 40 है तो 41, 42, 43 से 48 तक इनमें से कोई भी एक स्कोर आपका मिडिल इंडेक्स आएगा। बट इफ दिस स्कोर हियर इज लेस देन 40 तो वो लोएस्ट हो जाएगा और ये मिडिल इंडेक्स हो जाएगा। सो देयरफॉर द मिडिल इंडेक्स फॉर युवराज कैन बी फ्रॉम 40 टू 48। 40 से कम उसका एम इंडेक्स नहीं हो सकता। सोच के देखेगा 40 से एम इंडेक्स कैसे हो सकता है? द मोमेंट ही स्कोर लेस देन 40 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उसका मिडिल में स्कोर 40 आ जाएगा। एंड इफ ही स्कोर्स अबव 40 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो मिडिल में स्कोर जो है आपका वही आ जाएगा जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट स्कोर करेगा। सो इन एनी केस हिज मिडिल इंडेक्स is going to be between 0 and sorry between 40 and 48 only. Same for CAF now. CAF का हाईएस्ट स्कोर तो 51 है। अब एक जगह उसने 28 स्कोर किया हुआ, एक जगह 0 से 48। अगर 28 लोएस्ट है तो जो यहां पे 28 से ज्यादा स्कोर करेगा, 29, 30 एक्सेट्रा अप टू 48, तो वो एम इंडेक्स हो जाएगा। और अगर उससे नीचे चला गया तो ये एम इंडेक्स हो जाएगा। सो इन एनी केस इट कैन बी 28 टू 48। सिमिलरली अगर मैं राहुल की बात करूं, इट इज श्योरली 49। भाई 55 पक्का हाईएस्ट है, 49 सेकंड हाईएस्ट है, तीसरा स्कोर क्योंकि 22 तक भी नहीं जाता, सो इट इज श्योरली 49। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सौरभ, इट इज श्योरली 50। सो फॉर देम आई कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट द एम इंडेक्स। मुझे एक बार जल्दी बता दीजिए आप सब लोग, इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट है, बट आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आर इंडेक्स, एम इंडेक्स। बस हमारा हमारा सारा काम हो गया। Once we have understood the R index, M index, so what is he going to ask us? जो भी पूछेगा इन्हीं के बारे में तो पूछेगा। I can easily answer all the questions looking at this table now. अब तो मुझे देखना है और आंसर करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। I can easily answer all the questions looking at this only table.
ओके, आई एम श्योर इट इज क्लियर एवरीवन। सर हाउ 0 M इंडेक्स फॉर वीरेंद्र? वीरेंद्र सोचिए आप, अगर मान लीजिए वीरेंद्र ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 0 स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 0 स्कोर किया, तो उसके स्कोर्स हो गए 130-0-0। अब ऐसे केस में तो मिडिल इंडेक्स 0 आ सकता है ना। किसी भी प्लेयर ने, वो कह रहा है नो टू प्लेयर स्कोर द सेम नंबर ऑफ रन इन द सेम गेम। एक ही गेम में कोई दो लोग सेम स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन दो अलग अलग गेम्स में तो दो लोग सेम स्कोर कर सकते हैं ना। दैट्स पॉसिबल दैट ही स्कोर 0 इन बोथ ऑफ देम, दैट वे 0 कैन कम इन द मिडल। ओके, सो आई एम श्योर दैट दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल नाउ। तो आगे बढ़ जाता हूं मैं इससे सीधा सीधा। फॉर हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट एम इंडेक्स? आई कैन सी इन दोनों का मैं एग्जैक्ट एम इंडेक्स बता सकता हूं। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option C. Rahul and Saurabh are the two guys for which exact M index can be calculated. So answer for the question is 2. I'm sure it is understood to all. ये सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Here is question number 2 now. Among the players mentioned, who can have the lowest R index from the tournament? सबसे कम R index किसका हो सकता है among the players mentioned? अब R index देखिए यहां पर है, who can have the lowest R index? His R index is 130 से 82. His R index is 87 से 39. His R index is 51 to 3. नहीं 3 नहीं है, शायद मुझे लग रहा है कुछ गलत लिखा हुआ है या फिर उल्टा लिखा हुआ है। 51 से 3 नहीं, ये शायद 23 है। ओके, ये 51 से 33 है और ये 75 से 27 है। Who can have the lowest R index? Let's talk about, देखिए वीरेंद्र तो ऑप्शंस में ही नहीं है। Let's talk about युवराज। कैन युवराज हैज द लोएस्ट आर इंडेक्स? देखिए युवराज का आर इंडेक्स 87 से 39 के बीच आता है। ही कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ 39। ही कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ 39। वीरेंद्र कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 39। कैफ कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 39, भाई 51 तक जा सकता है। राहुल कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 39 बिकॉज 59 तक जा सकता है। सौरभ कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 39 क्योंकि वो 75 तक जा सकता है। ऑल ऑफ देम कैन हैव एन आर इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 39, दैट मींस युवराज कैन हैव द लोएस्ट आर इंडेक्स। 39 कैन बी द लोएस्ट अमंग ऑल आर इंडेक्सेस। और अगर 39 लोएस्ट हो सकता है तो 23 भी लोएस्ट हो सकता है, 33 भी लोएस्ट हो सकता है। तो युवराज, कैफ और राहुल, they all can have the lowest R index. The answer for this question is option A. तीनों लोगों का आर इंडेक्स लोएस्ट हो सकता है, राइट। सौरभ का आर इंडेक्स लोएस्ट नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ये मैंने यहां फिर से गलत लिखा हुआ है। ये 0 से 22 अगर आप लोगे तो माइनस करने पे दिस विल कम आउट टू बी 53 नॉट 27। ये पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई है। 75 में से 22 माइनस करके ये 53 आएगा। ओके, एक बार मैं इसको बाकी स्लाइड्स पे भी ठीक कर देता हूं वरना हम लोगों को बार बार करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट चेक इट ऑन द अदर स्लाइड्स एज वेल। हाँ जी, यहाँ पे ये 53 है और यहाँ पे ये 23 है। यहाँ पे ये 53 है और यहाँ पे ये 23। I don't know how it got eliminated by itself. 53 and 23. Yes, I think it will work now. Okay everyone, मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ आ रही है। Let's move ahead. इससे आगे बढ़ जाता हूं मैं। Next come to question number 3. How many players among those listed definitely scored less than युवराज in the tournament? कितने लोगों ने डेफिनेटली युवराज से तो कम ही स्कोर किया है। अब बात आ गई टोटल स्कोर की। लेट्स टॉक अबाउट टोटल स्कोर ऑफ ऑल द पीपल। वीरेंद्र का टोटल स्कोर कितना है? मिनिमम 130, 130 प्लस 0 प्लस 0। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 130 और यहां 0 से 48, यहां 0 से 48, दोनों में 48 48 स्कोर कर देगा। 96 और स्कोर करके स्कोर कैन बी 130 से लेके 226 तक। लेट्स टॉक अबाउट युवराज। 40 प्लस 87 इज 127 और 127 के बाद यहां पे लेके 0 से 48 तक कुछ भी हो सकता है। सो 127 प्लस 48, तो 127 प्लस 48 अगर मैं देखूं तो मिनिमम तो 127 है और मैक्सिमम है 175 तक। लेट्स टॉक अबाउट कैफ। 51 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 79। 79 और यहां 0 से 48 तक, तो 79 से लेके 127। राहुल की बात करते हैं। 5 प्लस 4 9, 104। मिनिमम 104 और यहां मैक्सिमम 22, तो 126 तक। सौरभ मिनिमम 125 और मैक्सिमम कितना? 125 प्लस 22, 147 तक। क्वेश्चन इज आस्किंग यू
हाउ मेनी प्लेयर्स अमंग दोज लिस्टेड डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज? कितने लोगों ने डेफिनेटली युवराज से कम किया है? When can I say a person has definitely scored less than Yuvraj? A person would have definitely scored less than Yuvraj if even the lowest score of Yuvraj is higher than their highest score. भाई किसी का हाईएस्ट भी अगर दूसरे के लोएस्ट से नीचे है, ही इज डेफिनेटली बिलो दिस. ये दो रेंज है स्कोर्स की. भाई ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ये दिस रेंज इज डेफिनेटली बिलो दैट रेंज. अगर इसका लोएस्ट इसका हाईएस्ट थोड़ा नीचे आ जाएगा, यू कांट से कि श्योरली कम है. समटाइम्स दिस कैन बी ग्रेटर, ये बड़ा हो पा रहा है, राइट? So if all of this range is above this range, that means the lowest of this range is above the highest of this range. Only then you can say so, and that's possible only in case of Rahul. सिर्फ राहुल एक ऐसा आदमी है whose highest is also less than that of युवराज. So therefore my answer is option B. Rahul is the only person who has definitely scored less than युवराज, क्योंकि युवराज का lowest भी उससे ज्यादा है. So therefore he would have definitely scored less than युवराज. That's answer option B. I'm sure that you guys have understood this point as well. About कैफ I cannot say so. क्यों नहीं कह पा रहा मैं? क्योंकि कैफ का हाईएस्ट युवराज के लोएस्ट के बराबर है. I can surely say CAF has definitely not scored more than युवराज, right? But they might score equal. मैं ये नहीं कह पाऊंगा कैफ ने युवराज से पक्का कम स्कोर किया है. वो इक्वल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं किया होगा ये पक्की बात है, लेकिन कम स्कोर किया जा सकता है, इक्वल स्कोर किया जा सकता है. दैट वाज पॉसिबल. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन बी. And this brings us to the last question of this set. Which of the players has the best M index from the tournament? M index किसका बेस्ट है? ठीक है, M index मैंने कहा था मिडिल नंबर. इसका मैंने आपको बताया था मिडिल नंबर कितना हो सकता है, 0 से 48. इसका मिडिल नंबर 40 से 48. It can be 28 to 48, it can be 49. This guy has an M index of 50, which is higher than even the highest of other people. It is higher than even the highest of other people. Therefore, Saurabh is the person whose M index is the best among all of them. Saurabh has the best M index among all. So therefore the answer for this question is option B. I'm sure all of you understood this. As I said, difficult set but a good set. I mean, इस तरह की नई चीजें जब किसी सेट में आती हैं तो करने में अच्छा लगता है. The way we have discussed M index and R index here. Okay, these were the first 4 questions from the first set. I'm sure that you guys have understood this set. I'll move on to the second set now. ये रहा second set आपके सामने आपके स्क्रीन पर. यहां पे प्लीज रीड इट एंड देन विल स्टार्ट डूइंग इट. एक बार पढ़िए जरा. ऑल ऑफ यू प्लीज रीड इट. एक बार पढ़ लीजिए, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. I'm sure all of you have read it, so I'll move ahead now to the next one. Here it is. एक बार ये भी पढ़ लीजिए. Then I'll show you the table.
हाँ जी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव रेड इट नाउ, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं. Here is the table given to us. Okay, so what I've done, I put up this table on the next page. He has already told us कि क्या क्या इस टेबल के अंदर है. After each team has played 2 matches, what is the situation that is given to us here? So how do we solve these questions? Let's start doing it. Okay, there are some things, I mean, it's a perfect question of games and tournaments, so therefore we have to understand it better now. Every team has played 2 matches, right? All of you can see that हर टीम ने दो मैचेस खेल लिए यहाँ पे. After that, I also see Germany has won 2 matches, Argentina has won 2 matches, Spain has won a match, Pakistan has won a match, और यहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं जीता है. There are no draws, that's also important. और यहां जितने जीते होंगे ऑफ कोर्स 2 में से माइनस कर दो तो यू विल गेट द गेम्स लॉस्ट, उसमें कुछ खास नहीं है. Goals for are given and goals against are given, and then points are also given to us. So how do we start this? First of all, he says in the opening match, Spain lost to Germany. So there is a match between Germany and Spain. Spain lost to Germany का मतलब ये है, I am writing the name of the winner first and the loser later on. Germany and Spain. So Germany won, Spain lost. इस ऐसा लिखने का मतलब हुआ ये. Now what is the score line? I don't know what is the score line. मैं एक random example लेता हूं. Let us say जर्मनी और स्पेन के बीच में 2-1 का स्कोर लाइन था. जर्मनी did 2 goals, स्पेन did 1 goal. तो जर्मनी के लिए it would be considered as 2 goals for and 1 goal against, whereas for Spain it would be considered as 1 goal for and 2 against. Are you getting my point? जो जर्मनी के लिए 2-1 होगा वो स्पेन के लिए 1-2 हो जाएगा, बिकॉज दिस मींस जर्मनी हैज डन 2 goals and Spain has done 1 goal on Germany. So जर्मनी के अगेंस्ट 1 goal हो रहा है, लेकिन स्पेन के अगेंस्ट 2 हो रहे हैं. So what is for Germany is against Spain and what is for Spain that is against Germany. So this is how we count it. ये ऐसे हम लोग स्कोर लाइन को देखते हैं. एक बार मुझे जल्दी बताइए पहले तो, आप ये सब लोग, आपको समझ में आई मेरी बात जो मैंने यहां बोला है? Is it absolutely clear to you? All of you please confirm it to me. ये बात मेरी समझ आती है? To all? What do, because I'll be using it a lot many times. इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, वो ये. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट जर्मनी, जर्मनी प्लेड 2 games and Germany won both of them. Just a second. हाँ जी, Germany played 2 games and won both of them, and there is a goal against Germany, and goals for Germany are only 3. So can I say कि जर्मनी ने पक्का ही एक मैच 2-1 से जीता होगा और एक 1-0 से? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. सी, इफ देयर इज 1 goal against you and you are not losing any game, if there is 1 goal against you, that means you would have done at least 2 goals to win that game. कम से कम 2 गोल तो करोगे तभी जीतोगे. और उसके अलावा there is 1 more goal that Germany has done. So to win the other game, they would have must have done that other goal. So 2-1 and 1-0 is the only score line which is possible by which Germany must have won its games. Similarly, when I talk about Argentina, Argentina 2 गेम जीता है, right? Argentina has won 2 games and they have done only 2 goals without conceding any goal. अगर आपको दोनों मैच जीतने तो एक ही तरीका तो है, 1-0 1-0 से जीतोगे, right? Is there any other possibility for Argentina? Of course not. अगर 2 मैच जीत रहे हो तो दोनों 1-0 1-0 से जीतने हैं. What about Spain? I cannot say anything about Spain yet because जब 5 goals किए हो और 2 आपके अगेंस्ट रहे हो and you are winning 1 and you are losing 1, there are various possibilities. कैसे हो सकता है? 3-2 से जीते हो, सॉरी एक 1-2 से हारे हो और दूसरा 4-0 से जीते हो. पॉसिबली एक 1-0 से हारे हो और दूसरा 4-2 से जीते हो. There can be other possibilities as well. So therefore currently I'm not going to talk about Spain. Let's talk about Pakistan.
Now Pakistan has won a game and lost a game. There is only one goal against Pakistan. जब पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ही गोल हुआ है और वो एक गेम हारे भी हैं, so the game they lost, they must have lost by 0-1. But if you lose a game, there must be at least one goal against you, and there is only one goal against them. So in the only game in which they lost, that one goal against them was there. So that means they would not have done any goals in that game. So the other match that they won, they must have won by 2-0. They must have won by 2-0. I am sure ये बात भी आपको समझ में आ रही है मेरी. उसके बाद बात आती है किसकी, और अब ये देखिएगा, when Pakistan wins a game by 0-1, that means someone would be losing a game by 0-1, that means someone would be winning a game by 1-0, right? If Pakistan is winning a game by 2-0, someone would be losing a game by 0-2, क्योंकि वो ऑपोजिट जाएगा ना दूसरे के पास स्कोर लाइन, तो वो ऑपोजिट जाना चाहिए. Then I talk about New Zealand. I can't say anything about New Zealand, too many goals against them, and I can't say anything about South Africa, too many goals against them. But I can surely say one thing: Germany won against Spain in a game, right? They must have won by 2-1 or 1-0, that I don't know. Spain has done a total of 5 goals. Can I surely say these goals must have been done against New Zealand? Because अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 goals हैं, who can do 6 goals against New Zealand if Spain does not play against New Zealand? सोच के देखिए. Germany has done a total of 3 goals. Argentina has done a total of 2 goals. Pakistan has done a total of 2 goals. No two teams are there whose total goals are more than 5. तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 goals कैसे हो सकते हैं if Spain is not playing against them? तो स्पेन को तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना ही पड़ेगा. I hope you are getting my point, right? So I can surely say that Germany won against Spain and Spain must have won against New Zealand in that other game. तो दो मैचेस जो हुए होंगे वो ऐसे हुए होंगे. I hope this part is clear to all of you. छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको एक बार चेक करके चलोगे, अभी तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, सो आई एम गोइंग एक्सट्रीमली स्लो. अदरवाइज यू कैन एक्चुअली लुक एट दीज थिंग्स वेरी फास्ट व्हेन यू आर डूइंग द एग्जाम. तब आपको दिखेगा एकदम से सारी चीजें, यार ये तो बड़ा आसान सी चीज है, ये तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं. एंड दैट वीज एक्चुअली यू कैन डू देम रियल फास्ट, बहुत आसानी से कर पाओगे. सो जर्मनी वॉन अगेंस्ट स्पेन, स्पेन वॉन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये दो चीजों के बारे में पता लग गया, राइट? जर्मनी वॉन वन अनदर गेम. अब जर्मनी ने जो अपना दूसरा गेम जीता है वो किससे जीता होगा? इट माइट बी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? एंड इट माइट बी अगेंस्ट स्पेन, स्पेन नहीं, इट माइट बी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी पॉसिबल है. तो हम डिफरेंट स्कोर लाइंस को चेक कर लेंगे, एक एक करके पॉसिबिलिटीज होंगी, वो सारी करके चेक कर लेंगे, ठीक है? कैन जर्मनी विन अगेंस्ट पाकिस्तान? यस, बिकॉज पाकिस्तान एक गेम 0-1 से हारा है, जर्मनी 1-0 के स्कोर लाइन पे पॉसिबल है, राइट? दैट्स पॉसिबल. अर्जेंटीना वॉन बोथ ऑफ इट्स गेम्स बाय 1-0, तो अर्जेंटीना किससे जीता होगा? अर्जेंटीना कैन नॉट विन अगेंस्ट जर्मनी, अर्जेंटीना कैन नॉट विन अगेंस्ट स्पेन बिकॉज स्पेन तो ऑलरेडी दोनों गेम खेल चुका. अर्जेंटीना मस्ट हैव वॉन वन ऑफ इट्स गेम्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वन ऑफ इट्स गेम्स अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट्स ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी. भाई गेम तो सबने एक एक करके हारना ही है ना, तो देखेंगे कौन किससे हारा है, दैट्स पॉसिबल. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉसिबिलिटी दैट जर्मनी स्पेन का जो स्कोर लाइन था उसको मैं एक लेके चलता हूं, कुछ भी रैंडम नंबर लेके चलते हैं. लेट अस से इट वाज 2-1. सो जर्मनी वॉन अगेंस्ट स्पेन बाय 2-1. तो जर्मनी के स्कोर से यहां 2 कम हो गया, 1 रह गया, और यहां से 1 कम हो गया, 0 रह गया. स्पेन के यहां से 2 कम हो जाएगा, दैट इज 3, और यहां से 1 कम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. समझ रहे हैं मेरी बात? जर्मनी डिड 2 गोल्स, 2 में से मतलब टोटल 3 में से 2 तो स्पेन के अगेंस्ट हो गए, उन्होंने एक और किया है. जर्मनी के अगेंस्ट एक गोल स्पेन ने कर दिया, सो देयर इज नो अदर गोल अगेंस्ट जर्मनी नाउ. सिमिलरली स्पेन के अगेंस्ट 2 गोल्स हो गए, तो स्पेन के अगेंस्ट में से 2 गोल्स माइनस हो जाएंगे, सॉरी ये 0 बचेगा, और स्पेन ने सिर्फ एक ही गोल किया तो ये 4 बचेगा. सो स्पेन मस्ट हैव वॉन द अदर मैच बाय 4-0. आई एम सॉरी फॉर दैट. तो स्पेन न्यूजीलैंड से 4-0 से जीत गया. किससे जीता? न्यूजीलैंड से. स्पेन का कोटा कंप्लीट हो गया. स्पेन वॉन अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय 4-0, तो स्पेन जो दूसरा गेम हारा होगा वो किससे हारा होगा? 2-1 से, राइट? स्पेन मस्ट हैव लॉस्ट बाय 2-1, सॉरी न्यूजीलैंड. बट क्या न्यूजीलैंड 2-1 से किसी से भी हार सकता है? एक बार देखो जरा, कैन न्यूजीलैंड
lose by 2-1 to anyone? No, right? Argentina did not win any match by 2-1. Pakistan did not win any match by 2-1. साउथ अफ्रीका तो मैच ही नहीं जीता. इसका मतलब मेरी अजम्पशन यहां पे गलत हो गई है, और गलत अजम्पशन का मतलब आई कैन नॉट टेक दिस एज 2-1. और अब देखिए फटाफट आपका आंसर आता हुआ चला जाएगा. आई जस्ट शो इट टू यू हाउ फास्ट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. जर्मनी जीता है 1-0 से, तो इसका मतलब जर्मनी ने 2 और गोल्स किए हैं, और गोल्स अगेंस्ट उसके अभी होना एक बाकी है. ठीक है, 2-1 से एक और गेम वो जीतने वाले. स्पेन, अब स्पेन के अगेंस्ट 0-1 आ गया यहां पे, तो ये तो अभी 5 का 5 रहेगा, बट यहां पे 1 आ जाएगा. सो स्पेन मस्ट हैव वॉन द अदर मैच बाय 5-1 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड के यहां से 5 कम हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहां से 1 कम हो जाएगा, 0 बचेगा. इसका मतलब न्यूजीलैंड जो अपना दूसरा मैच हारने वाली है, इट इज गोइंग टू लूज बाय 1-0. तो जर्मनी जो 2-1 से जीत रहा है, वो किससे जीत रहा है? फिर जर्मनी कैन नॉट विन अगेंस्ट अर्जेंटीना. अर्जेंटीना ने तो कोई मैच ही लूज नहीं किया. जर्मनी है प्लेड अगेंस्ट स्पेन. जर्मनी पाकिस्तान से 2-1 से नहीं जीत सकता, बिकॉज पाकिस्तान डिड नॉट लूज बाय 2-1. जर्मनी न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकता, राइट? सो देयरफॉर जर्मनी वॉन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका in the other game, and that game they won by 2-1. so their quota is complete. इनका कोटा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, राइट? दे वॉन दी अदर गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय 2-1, तो साउथ अफ्रीका में जाएगा 1-2, तो 0 यहां आ जाएगा, 2 यहां. सो साउथ अफ्रीका लॉस्ट दी अदर मैच बाय 2-0. नाउ किससे हारेंगे? ओनली पाकिस्तान कैन विन बाय 2-0. सो देयरफॉर इन दैट अदर गेम पाकिस्तान वॉन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड द स्कोर लाइन फॉर दैट इज 2-0. तो इसका भी कोटा कंप्लीट हो गया है, राइट? अब बचे कौन मेरे पास? अर्जेंटीना. आई कैन श्योरली से अर्जेंटीना ने तो अपने दोनों मैच 1-0 से ही जीते हैं. अर्जेंटीना वॉन बोथ ऑफ इट्स मैचेस बाय 1-0. तो किससे, सॉरी ये तो मैंने उस अलग कलर में लिखने थे ना. हाँ जी, तो ये किससे जीते होंगे? अब तो बहुत सिंपल है. अर्जेंटीना वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पे 0-1 आना है, एंड अर्जेंटीना वॉन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां पे ये 0-1 आना है. सो देयरफॉर द अदर टू स्कोर्स आर 1-0 एंड 1-0. दैट्स इट. अब हमारा पूरा सेट ये कंप्लीट हो जाता है. विच टीम वॉन अगेंस्ट विच टीम एंड बाय व्हाट स्कोर लाइन, दैट वी हैव कंप्लीटेड. बट अभी भी ये सिर्फ 2 ही सेट्स हुए हैं, इसके बाद एक और भी है. ठीक है, सॉरी, और भी इंफॉर्मेशन है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सेट भी कैट 2004 का ही है. देयर वर 2 सेट्स ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, एक ये और एक अपने जो पहले पढ़ा, और ये भी 2 मार्कर्स में ही था. दिस वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देयरफॉर 2 मार्कर्स में ही पूछे गए थे. चलिए जी, अब इसके बाद मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं. उसने ये भी बोला है कि थर्ड राउंड में क्या हुआ, फोर्थ राउंड में क्या हुआ, फिफ्थ राउंड में क्या हुआ, ये भी बता रहा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड एज वेल. उसके बारे में बात कर लेते हैं. इन द थर्ड राउंड स्पेन प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, अर्जेंटीना प्लेड अगेंस्ट जर्मनी, एंड देन न्यूजीलैंड प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. और ये सारे मैच ड्रॉ हुए हैं. सो लेट अस से देयर स्कोर लाइंस आर ए ए, बिकॉज दे ऑल आर ड्रॉन. तो ये ए ए का स्कोर लाइन है. व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ राउंड के बारे में क्या कहा? स्पेन वॉन बोथ द फिफ्थ एंड फोर्थ राउंड मैचेस. स्पेन यहां भी जीता है अपना मैच, और स्पेन यहां भी जीता है अपना मैच. बोथ अर्जेंटीना जर्मनी वॉन देयर फिफ्थ राउंड मैचेस बाय 3-0. अर्जेंटीना यहां जीता और जर्मनी यहां जीता, और ये दोनों जीते हैं 3-0 से. तो बोथ हैव वॉन बाय 3-0. पाकिस्तान वॉन बोथ द फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड मैचेस बाय 1-0. पाकिस्तान यहां भी 1-0 से जीता, पाकिस्तान यहां भी 1-0 से जीता. द ईयर दिस सेट केम, एक्चुअली दिस वाज अ मिस्टेक इन द सेट. अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, मिस्टेक ये है, राउंड 4 में 2 गेम्स आ रहे हैं और राउंड 5 में 4 गेम्स आ रहे हैं. तो ये एक्चुअल मिस्टेक थी, कैट एग्जाम में ही एज इट इज मिस्टेक आई. सवाल ये है कि ये गेम्स है किस किस के अगेंस्ट? स्पेन हैज प्लेड अगेंस्ट ऑलरेडी, यहां पे जर्मनी के अगेंस्ट. स्पेन हैज प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड. स्पेन हैज प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान. जर्मनी न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खेल चुका है. बचे कौन? अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका. और यहां तो अर्जेंटीना ऑलरेडी जीत रही है. सो साउथ अफ्रीका मस्ट बी लूजिंग हियर टू स्पेन, अर्जेंटीना मस्ट बी लूजिंग हियर टू स्पेन. दैट वेज आई कैलकुलेट अदर्स एज वेल. जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट अर्जेंटीना हियर, पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हियर, और यहां पे स्पेन. सो अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, स्पेन चले गए. बचे कौन? जर्मनी और न्यूजीलैंड. सो पाकिस्तान हैज टू प्ले अगेंस्ट जर्मनी एंड न्यूजीलैंड. यहां तो जर्मनी जीत रहा है, तो यहां पे न्यूजीलैंड से जीता होगा पाकिस्तान, और यहां जर्मनी से. Similarly, when I talk about Germany, Germany has played against Spain, South Africa, Argentina and Pak. तो बचा कौन?
सो ओनली अर्जेंटीना, सॉरी अर्जेंटीना भी हो गया, तो बचा कौन? न्यूजीलैंड। तो जर्मनी प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड हियर, सिमिलरली अर्जेंटीना प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हियर, एंड नाउ द होल थिंग इज कंप्लीट। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चंस को आंसर करना है। हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। ये दोनों टेबल मैंने बना के रखी हुई है नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी। सो हियर इट इज द फर्स्ट टेबल। Which one of the following statements is true about the matches played in first two rounds? तो यहां पे दूसरी टेबल अभी नहीं है। Germany beat New Zealand by 1-0. Germany beat New Zealand by 1-0 is wrong. Spain beat New Zealand by 4-0. Spain beat New Zealand by 4-0 is wrong. याद है ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी यही थी। Spain beat South Africa by 2-0. Spain beat South Africa by 2-0 is also wrong. Germany beat South Africa by 2-1 and that's correct over here. So Germany beat South Africa by 2-1. Our answer is option D. Next, question number 6. Which one of the following statements is true about matches played in first two rounds once again? Pakistan beat South Africa by 2-1. Pakistan beat South Africa by 2-0, not 2-1. Argentina beat Pakistan by 1-0. Argentina beat Pakistan by 1-0. That's correct. So second statement itself is correct. My answer is option B now. What next? 7. Now this was a wrong question as well as 8th, क्योंकि डेटा ही गलत हो गया था ना, मैं बताता हूं क्यों गलत। If Pakistan qualified as one of the two teams from pool A, अब पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है? दैट्स ए प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो पहले सेट पे हमने पढ़ा था, फॉर एवरी विन यू गेट 3 पॉइंट्स, फॉर एवरी लॉस यू गेट 0, फॉर ड्रॉ यू गेट 1, राइट? पहली बात तो ये। और उसने कहा अगर कोई भी वो होता है, आई मीन इफ देयर इज अ टाई, देन ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस अ टीम वुड गो अप, गोल डिफरेंस के बेसिस पे। अब जरा एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेन। स्पेन जो है, इट वॉन अ मैच हियर 3 पॉइंट्स, वॉन अ मैच हियर 3 पॉइंट्स, वॉन अ मैच हियर 3 पॉइंट्स, और यहां पे ड्रॉ, तो टोटल पॉइंट्स बने 10। लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी। जर्मनी यहां जीता 3 पॉइंट्स, यहां जीता 3 पॉइंट्स, ड्रॉ यहां पे 7 पॉइंट्स, यहां जीता 3 पॉइंट्स, स्कोर बना 10। लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वॉन हियर 3 पॉइंट्स, अर्जेंटीना वॉन हियर 3.6, और यहां जीते 7, सॉरी ड्रॉ हुआ 7, और यहां जीते 3, 10। एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान वॉन हियर 3 पॉइंट्स, यहां पे ड्रॉ कर लिया 4, यहां जीत गए 7, और यहां भी जीत गए 10। ऑल द 4 टीम्स हैव गॉट 10 पॉइंट। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो तकरीबन सारे मैच आ रहे हैं, दे डू नॉट हैव 10। सो 4 टीम्स टॉप पे आ गई, एंड आउट ऑफ दीज 4 ओनली 2 टीम्स विल मूव अहेड, और वो कह रहा है वो गोल डिफरेंस के बेसिस पे जाएंगी। लेट्स लुक एट देयर गोल डिफरेंस नाउ। गोल डिफरेंस का मतलब है गोल्स फॉर माइनस गोल्स अगेंस्ट। पहले मैं बात करता हूं स्पेन के बारे में। स्पेन यहां 5-1 से जीता, गोल डिफरेंस इज 4, और स्पेन यहां पे 1-0 से हारा, दैट इज -1, तो 4 - 1 हो गया 3। यहां ड्रॉ, ड्रॉ में तो गोल डिफरेंस 3 का 3 ही रहेगा। हियर द गोल डिफरेंस विल इंक्रीज एटलीस्ट बाय 1 बिकॉज दे वॉन, तो कम से कम 4 का हो जाएगा गोल डिफरेंस। और यहां भी जीते, यहां भी एटलीस्ट 1 का डिफरेंस आएगा। सो स्पेन विल हैव अ गोल डिफरेंस ऑफ 5 और मोर। स्पेन विल हैव अ गोल डिफरेंस ऑफ 5 और मोर। लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी। जर्मनी का यहां गोल डिफरेंस 1 का है, यहां भी गोल डिफरेंस 1 है, 1 + 1 2। हियर इट इज अ ड्रॉ, यहां -1 हो गया, 2 - 1 इज 1, और यहां 3 का है, 1 + 3 इज 4। सो जर्मनीज गोल डिफरेंस इज एग्जैक्टली 4। लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना। यहां गोल डिफरेंस 1, यहां गोल डिफरेंस 1, 1 + 1 2, यहां ड्रॉ। हियर अर्जेंटीना लॉस्ट बाय एटलीस्ट 1, कम से कम एक से तो लूज करेंगे। सो इसका मतलब 2 में से कम एक माइनस होगा, इट कैन बी 1 और बिलो, बट हियर इट फर्दर इंक्रीज बाय 3, तो 4 और बिलो। सो 4 और बिलो, 4 माइनस, मैक्सिमम 4 हो सकता है अर्जेंटीना का गोल डिफरेंस। लेट्स टॉक अबाउट पाक। हियर द गोल डिफरेंस इज 2, हियर द गोल डिफरेंस इज -1, 2 - 1 इज 1, 1 के बाद यहां पे 0, 1 ही रहा, यहां पे 1 दैट इज 2, और यहां पे 1 दैट इज 3। देयर गोल डिफरेंस इज 3। हाउ कैन पाकिस्तान क्वालिफाई एज वन ऑफ द टॉप 2 टीम्स? वो तो क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, Pakistan cannot even qualify because for sure Spain has got the highest goal difference. वो तो पक्का क्वालिफाई कर रहे हैं। The second highest can be of Germany or Argentina. Argentina भी 4 हो सकता है जर्मनी के साथ साथ, but in any case पाकिस्तान तो highest हो ही नहीं सकता। So therefore the answer for this question we had to give as cannot be determined. Actually the answer is data inadequate. ये data inadequate, rather inconsistent है, inadequate भी नहीं, inconsistent. And lastly, which team finished at the top of the pool at the 5?
ये पक्का कह सकते हैं कि स्पेन पक्का टॉप पे थी, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है। दिस इज डेफिनेटली स्पेन बिकॉज देयर गोल डिफरेंस इज 5 और मोर, बाकियों के लिए तो उससे कम रह गया ना। सो स्पेन इज डेफिनेटली द टीम which was at the top of the pool after 5 rounds of matches. So these were the 4 answers for this set. I actually say agree with it. Difficult set tha, pakka hi mushkil hai, there is no doubt about it. Okay. So that is all from my side, guys. Now this is our online classroom program heroes that we have. You can look at their percentiles. The top 5 people from our online classroom program. There are many more people, of course, but these are the top 5 people who have scored these percentiles. Of course, these are like dream percentiles for many of us. You also want to score such a percentile? Join us in our comprehensive program, where we provide you everything that is written on the screen, right? So recorded classes, live classes, a lot of practice material, previous year papers as well. Along with that, there is GDPI VAT preparation as well. Join us for it. And to facilitate you with that, we also have a scholarship program, a scholarship test that you can appear for on 28th of May at 11 a.m. And you can get up to 90% scholarship. Register for it now. And there is a program for 6 months to CAT 2023. There is a session being taken by Gautam Baba, who is an IIM Calcutta alumnus. He'll be taking a session on BYJU'S exam prep again on 21st of May at 11 a.m. Join him and you can ask any questions along with going through the strategy for the next 6 months. We are also having these section-wise quizzes on our app. Just do check them. If you want to prepare for CAT 23, this is going to be really helpful for you. Along with that, on our YT channel, we have this series of 500 most expected questions. You can go through that as well. We are also available on all these media handles. That's all from my side. I'm sure you like the class. Till then, so next time फिर मिलेंगे. Till then, bye bye and take care of yourself. Have a good day. Bye everyone.